Hello everyone, welcome to the management class and this is your part 4. In this session, we are going to start the topic elasticity of demand. In elasticity of demand, there are 3 subtopics that we have to study: price elasticity, income elasticity and cross elasticity. So before we start elasticity of demand, let's have a quick recap that we did in the previous video. In previous video, we studied that the slope of the demand curve is downward sloping shape, and we studied the reason why this demand curve is downward sloping. This shows the inverse relationship between the price and demand. The first reason is the willingness to pay, or the law of diminishing marginal utility. As the price of the product increases, my willingness will decrease. I will replace it with another product. So this shows the inverse relationship. ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो मैं obviously उसको replace करूँगी. दूसरा, income effect. Income effect कहता है when my income increases, my salary increases, that provides me a greater opportunity to purchase the good. So, अगर एक ऐसी situation होती है when the price of the commodity decreases, keeping my income same, मेरी income same है और commodity की price decrease हो गई जो मैं usually खरीदती हूँ, इससे क्या होगा? Now I am in the position to buy some other commodity with the same income, because ये 1000 रुपए में पहले मुझे मिल रहा था, अब 800 रुपए में मिल रहा है. So now I have 200 rupees extra to buy some other commodity, right? So at the lower price of the commodity, the demand for the other products or the demand for that product would be high, and hence the demand curve is again an inverse relationship falling down. Substitution effect. Substitution effect says that when the price of any commodity falls, it becomes cheaper. So when it is falling, it becomes cheaper. दूसरा commodity जो महंगा है, I will replace those commodity with the cheaper one. Again an inverse relationship. It is falling. So basically these 3 factors are main reason for the downward sloping or the downward curve of demand. There are few more reasons, miscellaneous reasons: new consumer, too many uses, and psychological effect. Now there is one PYQ basis of these reasons. Which of the following explains downward slope of an ordinary demand curve? Income effect of the price change? Yes, we studied. Substitution effect of price change? Yes, we studied. Utility maximizing behavior of the consumer? Yes, that is your willingness to pay. Risk averse behavior of the consumer? No. So the options is 1, 2 and 3. Option number C is correct here. First 3 are the reasons for the downward movement of the demand curve. Another. Which of the following cause demand of the product to the increase? So if there is a price is the one factor having inverse relationship. Other than this, there are number of the factors which affect the demand of a product, which we have studied in earlier class. उन factors में से which of this, वही factors हैं, ये जो reasons दिए हैं, among these reasons which will lead to the increase in demand? Increase in consumers' income, increase in prices of substitute, increase in price of complement. Substitute, complement, ये related goods के example. Related goods में substitute मतलब when I am able to substitute one product completely by B, that is substitute. या A की जगह मुझे substitute available है तो हम उसे substitute good कहेंगे. Complement यानी A के साथ
या एक ही वजह से दूसरे, सो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होगा, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री में if the price of one product is increasing the demand for other product increases, ठीक है। so now this is your complementary, increase in number of substitute, the increased taste of the commodity, इसमें से कौन से ऐसे रीजंस हैं जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट को इंक्रीज करेगा, तो ए यस, प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट फ्लक्चुएट होंगे, इंक्रीज होंगे, तो ए और बी है। सब्स्टिट्यूट की प्राइस 100 रुपीज थी 110 हो गई, तो ऑब्वियसली मैं इसको छोड़ दूंगी, इसकी इंक्रीज हो रही है, तो दिस विल इंक्रीज द डिमांड। प्राइस इंक्रीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो इसका भी इंक्रीज होगा प्राइस, राइट। सो दिस एंड दिस आर नॉट एक्चुअली द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन डिमांड। एंड फाइनली if the taste, obviously the taste for the commodity, quality of the commodity is increasing, I will buy it, the demand would increase. Now another question, the quantity of product demanded invariably changes inversely to the change in price, change in its price, the price effect in the net result of the positive substitution effect and negative income effect. Now let's first do this question. Statement A is not correct because it's not invariably, it is variably, ठीक है। दूसरी चीज yes, जो प्राइस इफेक्ट है ना, जो मनी है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन होते हैं वो इफेक्ट पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का होता है रिजल्ट, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल इन कमिंग स्लाइड। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे स्टेटमेंट ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सॉरी, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, इनकरेक्ट, एंड आर इज ट्रू। Law of demand shows an inverse relationship between the price and product, बराबर है। डिमांड में और प्राइस में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे डिमांड डिक्रीज होगा, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होगा, हाइयर प्राइसेस लोअर वुड बी द डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर even if the product is having higher prices, people will have the demand, higher demand, or the demand won't change. ये exceptions है। In this case, instead of downward sloping of demand curve, the demand curve would be sloping upward, or it is positive. So when it is showing upward direction, it shows that there is a direct relationship between the price and demand. Price increases, demand increases. Now which are the examples of this product where the prices is also increasing and demand is also increasing? Those goods can be categorized into different forms and they are called as exceptions. जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसके एक्सेप्शंस हैं, वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दिस। प्रेस्टिजियस गुड जिसे हम वेबलियन इफेक्ट कहते हैं, गिफिन गुड्स, बैंड वैगन इफेक्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर, ड्यूरिंग वॉर और इमरजेंसी, ignorance, snob appeal, brand loyalty. Let's see them one by one in detail. A Veblen good is a name after the author Thorstein Veblen. अब Veblen good होते क्या है? Veblen good are those prestigious goods or those goods that represent the status. अब status को दिखाने के लिए भले ही प्राइस इंक्रीज हो रही है, still we purchase them like diamond. कि स्टेटस शो करता है, राइट। ऐसा होता है क्या प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो डायमंड की डिमांड कम होगी? नो, दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग प्रेस्टिजियस। वी बाय गोल्ड इन मैरिजेस, सोना तो खरीदना है, गोल्ड तो लेना है, भले ही महंगा होते जा रहा है लेकिन दिस शोज द स्टेटस। सो व्हेन prestigious social prestige, the goods which are related to the social prestige,
their demand does not get affected with the price, or with the price increase their demand increases, because it shows status. You had such capacity, you had such ability to purchase highly valuable product, highly prestigious product, that is Veblen, Giffen good. This good is named after Sir Robert Giffen. अब Giffen का मतलब, Giffen goods are those inferior goods which are having highly negative income elasticity. Now, this sentence I will explain in the income elasticity of the demand, but please remember, Giffen good are having a high negative income elasticity of demand. What does this mean? We'll come to that. Now, क्या होता है इन inferior goods के अंदर में? So let's say there are two people, A and B. A is having a low salary, B is having little bit higher than him, C is having more than him. So the Giffen goods are those goods which are purchased by the low paid wage earners, जिनकी सैलरी कम होती है, कम इनकम होती है, एंड वो अपने इनकम का लार्ज प्रपोर्शन इन गुड्स को खरीदने में खर्चा करते, लाइक बाजरा, जवार. यहां पे द डिमांड इज अपवर्ड स्लोपिंग. द रीजन इज, ये जो हमारे गुड्स है ना, ये ऐसे गुड्स हैं जो लो वेज अर्नर्स या जिनकी इनकम कम होती है उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है. ठीक है, लेकिन जैसे ही, अब इसमें नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्यों कहा गया है? जैसे ही बी यानी ए की ही सैलरी लो से थोड़ी सी हाई हो जाएगी, मिडिल क्लास या ऊपर चला जाएगा, वो इसकी जगह इसकी सब्स्टिट्यूट्स हायर अच्छे गुड्स खरीदेगा. तो गिफन गुड्स का मतलब है वेयर अ person with the lower wage is spending his larger proportion to purchase these goods. Next, bandwagon effect. This is a kind of effect where जो consumer है, they try to copy or imitate the consumption of pattern of high income group. हम लोग ना, like we have seen most of the time, जो ब्रांड के क्लोथ्स होते हैं ना, we believe this brand clothes can be purchased by only the people with high salary, and we try to copy, consumer try to copy in to match their status. उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर या पैटर्न जो वो कंजम्पशन होता है इन हाई लेवल सैलरी या हाई इनकम वालों का, उससे जब कॉपी किया जाता है उसे बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं. और इस इफेक्ट में भले ही इन ब्रांड क्लोथ्स की प्राइस हाई हो, still they are being purchased. So again, a positive sloping. Expectations. People believe in coming time, वो expect करते हैं that in coming time the price for this product in future will increase. ठीक है, they will believe that in coming time the prices for this product will increase. And similarly, while purchasing this good, जब वो ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, जिनका वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम पे इन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए मेरे को इसको अभी ले लेना चाहिए, this obviously provide the upward sloping. At the same time, similarly, they will buy the product at the lower price अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस की कमोडिटी लोअर होगी, राइट. एनीवेज इन बोथ द केसेस उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना कि आने वाले टाइम में प्राइसेस हाई हो जाएगी, इसलिए मेरे को अभी ये प्रोडक्ट खरीदना है, दिस विल गिव अ पॉजिटिव स्लोप टू द डिमांड. नेक्स्ट, emergency. कोविड वॉज एन emergency, your फ्लड, your वॉर, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. सिंपल अगर हम कोविड की बात करेंगे, कोविड के दौरान में मेडिसिन्स, कोविड के दौरान में हमारा राशन,
हमारी डेली नीड्स की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई थी, बट स्टिल पीपल वेयर बाइंग. उनके प्राइसेस बहुत हाई थे, एवरीथिंग वॉज वेरी कॉस्टली, बट स्टिल पीपल वेयर बाइंग बिकॉज ड्यूरिंग दिस emergencies देयर इज अ फियर ऑफ शॉर्टेज ऑफ नेसेसिटीज. इनसिक्योरिटी होती है कि खत्म हो जाएगा, तो कंज्यूमर बाय देम इवन एट द हायर प्राइस. Ignorance. Sometime consumer will think price will be higher. जिस प्रोडक्ट का प्राइस हायर है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, महंगा है तो अच्छा है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, sometime they buy the product at the higher price because they are ignorant to the real value. That is your ignorance. Snob appeal. Snob appeal is a condition जहां पे हम पुरानी एंटिक चीजें होती ना, एंटिक चीजें, मैन्युस्क्रिप्ट, पीसेस ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, पुरानी पुरानी चीजें, इनको हम हायर प्राइजेस पे भी खरीदते हैं. Even if the prices of this antique sculptures or the articles are increasing, still we buy it. This is called as snob appeal. So snob appeal is basically showing the effect where people buy this because they are antique in nature. They are related to their history, their culture, their sociological importance. Again, giving rise to the positive effect. Positive curve. Brand loyalty. Again here, people, the law of demand is neglected. The reason is brand loyalty. Some have an attachment to the brand. इसके प्राइसेस कितने भी हो जाए, लेकिन मेरे को इसी ब्रांड का कपड़ा लेना है, मुझे इसी ब्रांड के प्रोडक्ट लेने हैं, कितने भी हाई हो जाए प्राइसेस. अगेन अ पॉजिटिव स्लो. सो दैट इज योर, दीज आर दी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं ये सारी चीजें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Many consumers seek to be different and exclusive by demanding less of commodity as more people consume it is called. So they will demand the commodity exclusive in nature. The term exclusive is the keyword यहाँ पे, तो हम इसे snob effect कहते हैं. Here it's written the snob effect is a phenomena described in microeconomics, is a situation where demand for certain good by individual at of a higher level in income level is inversely related to demand by those at lower level. Comparatively जो हायर इनकम पे होते हैं वो प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन जो लोअर इनकम पे होते हैं वो नहीं लेंगे. ठीक है. The snob effect contrasts most other microeconomic model that the demand curve can have a positive slope rather than typically negative slope. ठीक है. सो जो एक्सक्लूसिव चीजें होंगी ना वो स्नॉब इफेक्ट क्रिएट करती है. नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी? वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. सो बेसिकली देयर आर टू टर्म्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. What do you mean by elastic? It says flexibility. It says a relationship which changes get affected. Inelastic, rigid, a relationship which does not get affected in change of the variable. Elastic यानी जहां पे एक दो वेरिएबल्स के बीच का कोई भी एक चेंज दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है. और इनइलास्टिक का मतलब जहां पे एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता. सो इलास्टिसिटी एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन अ चेंज इन प्राइस एंड कॉन्सिक्वेंट चेंज इन अमाउंट डिमांडेड. नाउ अंडरस्टैंड. इलास्टिसिटी क्या बताता है? एक रिलेशनशिप शो करता है. किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में. ठीक है. कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा?
प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. The elasticity of demand was introduced by Marshall. Elasticity of demand shows to what extent change in quantity demanded due to the change in the price. Price change करने की वजह से डिमांड, जो अगर मेरे 10 रुपए में कोई चीज मिल रही थी आज वो 50 रुपए की हो रही है, तो क्या मैं सेम क्वांटिटी खरीदूंगी? वो चेंज क्या है, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं. इन इलास्टिक का मतलब होता है कि भले ही वो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, स्टिल डिमांड रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड पे. सो वी हैव इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. प्राइस इलास्टिसिटी, जहां पे हम प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं. इनकम इलास्टिसिटी, जहां पे हम इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी, इसका मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड या एक प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस की बात हो रही है तो हम इसे डिनोट करेंगे ईपी से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is nothing but a degree of change in the quantity demanded due to the change in the price. तो मैंने अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइसेस 10 से 12 कर दिए और 10 रुपए पे अगर 8 प्रोडक्ट बिक रहे थे तो 12 पे कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं. लेट्स से 6 खरीद बिक रहे हैं. ये जो चेंज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस इज इलास्टिसिटी. और यहां पे जो हम फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं वो प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी. सो सिंपल डेफिनेशन, प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कई बुक्स में आपको ये परसेंटेज की जगह पे लिखा होगा प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. तो वो भी सही है, लेकिन हम यूजुअली इसको ऐसे लेते हैं. सो सिंबॉलिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्राइस इलास्टिसिटी डिवाइडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी चेंज. ठीक है, क्वांटिटी चेंज, ये क्वांटिटी चेंज, ये है चेंज इन क्वांटिटी. ओरिजिनल क्वांटिटी, हम परसेंटेज बात कर रहे हैं ना, ये परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय प्राइस चेंज, दिस इज चेंज ओरिजिनल प्राइस, और परसेंटेज निकालना है इसलिए ऐसे 100. अब 100 कैंसिल, सो वी गेट क्वांटिटी Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय क्वांटिटी P डिवाइडेड बाय P. तो मैथमेटिकली अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये दो टर्म्स नीचे रह जाते हैं और ये ऊपर आ जाते हैं. सो दिस इज हाउ द लास्ट फॉर्मूला कम्स, वेयर EP is the price elasticity, Q is the original demand, delta Q is your change in quantity demanded, P is original price and delta P is change in price. So अगर आपको कोई मैथमेटिकल सम आता है और उसमें ये वैल्यूज दिए हैं तो इस फॉर्मूलेस को यूज करके आप इजीली उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब the question, this is your PYQ. Price elasticity of a demand for a product is measured by, very simple. तो अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है, इट्स ऑप्शन नंबर दिस. ठीक है, Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय डेल P डिवाइडेड बाय P. ठीक है, ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि P बाय Q होगा यहाँ पे और ये Q ऊपर होगा, P यहाँ पे. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ना, ये जो फ्लक्चुएशन है डिमांड में प्राइस की वजह से, इसकी ना डिग्री होता है, वेरिएशन होगा अलग अलग रेंज में. तो हम इसे टाइप्स या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं. सो वी हैव 2 एक्सट्रीम्स
इन्हें हम एक्सट्रीम्स कहते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी infinity, when price elasticity is infinity, when price elasticity is zero. These are two infinities. They are called as perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. Then we have relative elastic demand where EP is greater than 1 and relatively inelastic demand where EP is less than 1. Unitary elastic demand where EP is equal to 1. So जब हम कह रहे हैं ना EP is equal to infinity, EP is equal to 0, ये एक्सट्रीम्स हैं. ये कब पॉसिबल होते हैं? जब मार्केट परफेक्ट मार्केट होता है. ठीक है, we will study in detail. When we are saying infinity, EP is greater than 1, तो somewhere, okay, we'll explain this when we will be coming to this relative. एक एक करके समझेंगे. So the first one is perfectly elastic demand. This perfectly elastic demand says that, or in this degree it says that a small change, even a small change in price of the product will infinitely or unlimitedly increase or decrease the demand. So if the price is increasing, the demand of that product with, so let's say negative, if say price is decreasing, थोड़ा सा भी price decrease हो रहा है, the demand for that product will increase infinitely या unlimitedly. यानी अगर कोई चीज 10 रुपए में है, वो 10 से मैंने अगर 9.5 भी कर दिया तो भी ये perfectly elastic demand कहता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगी इवन बिकॉज ऑफ स्मॉल फॉल इन प्राइस. एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, और अगर प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, डिमांड विल फॉल टू 0. दिस इज व्हाट द perfectly elastic demand says. It is also known as infinite elasticity, but this is not of practical importance, not possible in real. ऐसा नहीं हो सकता. It is rarely found that किसी भी प्रोडक्ट का आप स्मॉल चेंज करते हुए ही उसका इनफाइनाइटली उसकी डिमांड बढ़ गई. नहीं. Now if I have to draw a graph, तो डिमांड कर्व कैसा होगा? डिमांड कर्व is, this is your x axis, this is, sorry, so we have price, this is your y axis and quantity x axis. ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, दिस इज योर प्राइस, दिस इज इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीज हो रहा है. इनफाइनाइट इलास्टिक कहता है कि मैंने अगर 12.5, ठीक है, 12.5 से नीचे ले आई 10 पे, उसकी डिमांड इनफाइनाइटली इंक्रीज होते चले जाएगी. सो दिस डिमांड कर्व, ये डिमांड है ना, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यहां पे डिमांड कर्व क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बिकॉज वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, वो चलता ही जाएगा, तो वो इंक्रीज इनफाइनाइटली है एंड हेंस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Moving to next, perfectly inelastic demand, जहां पे EP is equal to 0. इनइलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस अगर एक प्रोडक्ट के इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेसिफिकली. ठीक है, अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कब कहा जाता है? इट इज सेड दैट if the price of the product falls to any extent or increases to any extent, the demand will remain constant. कुछ भी हो जाए, डिमांड कांस्टेंट ही रहेगा. मतलब यहां पे जो इलास्टिसिटी है वो 0 है. यहां पे इलास्टिसिटी 0 है बिकॉज चेंज ही नहीं हो रहा है, एंड हेंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो इलास्टिसिटी. अगेन इट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस बिकॉज ये रियल में ऐसा नहीं होता है. ठीक है,
एंड इफ वी ड्रॉ अ कर्व, ये प्राइस है, ये डिमांड है। तो अगर प्राइस चाहे कोई भी हो, इंक्रीज या डिक्रीज, प्रोडक्ट की डिमांड अगर 50 है तो 50 ही रहेगी। सो हियर द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू योर y एक्सिस। क्लियर? दिस टू EP is equal to infinity and EP is equal to 0 are two extremes of elasticity जो रियल में नहीं होते हैं, rarely found होते हैं, एक imaginary situation. Now, relatively elastic demand where EP is said to be greater than 1. This is also called as high elastic और सिंपली इलास्टिक डिमांड। अब हाई का मतलब क्या, ये ग्रेटर देन ईपी का मतलब क्या, समझते। वी नो द फॉर्मूला, ईपी इज इक्वल टू क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। करेक्ट? राइट? फॉर द टाइम बिंग जस्ट फॉरगेट दिस। हम एक मैथमेटिकल चीज समझते हैं। 5 divided by 4. When your numerator is greater than denominator, and if you divide it, the value would be always greater than 1. Correct? 4 and then 10, 2. It is always greater than 1. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, change, percentage change in the quantity demanded is greater than the percentage change in the price, and this is called as relatively elastic demand. What does this mean? That if you are changing the price by 5% or increasing, basically if decreasing the percentage of price or decreasing the prices by 5%, the demand will increase by 10% or more. तो जो आपका परसेंटेज चेंज इन द प्राइस है, उससे ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन हैपन इन लग्जरी गुड। जो हमारे लग्जरीज गुड होते हैं ना, लग्जरी जो स्टेटस शो करता है, वो कार, टेलीविजन, फ्यूचर, यू नो, इनमें बहुत कम, लाइक इसमें ना डिस्काउंट आता है या प्राइजेस जो फॉल होते हैं ना, बहुत कम रेट पे फॉल होते हैं। गोल्ड हो गया, कम रेट पे होते हैं, लेकिन इनकी डिमांड तुरंत बढ़ जाती है हायर रेट पे। द रीजन इज बिकॉज दे आर लग्जरी, दे आर समथिंग जो इजिली चेंज नहीं होते हैं, प्राइजेस कम नहीं होते हैं। सो फॉर लग्जरी गुड द इलास्टिसिटी इज सेड टू बी हाई। याद रखेंगे, लग्जरियस गुड के लिए इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज हाई, इट मींस प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। फाइन। एंड अगर हमें यहां पे डायग्राम ड्रॉ करना है, सो इफ अर्लियर प्राइस वाज P, it fall to price 1, small change, this is the change. Earlier quantity was M, then became M1. तो ये जो चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड का, प्राइस ज्यादा है, एंड इफ यू ड्रॉ दिस हियर इट गिव्स यू अ फ्लैट कर्व. सो द डिमांड कर्व फॉर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड is flat in nature and elasticity is greater than 1, it means highly elastic. Then relatively inelastic, where elasticity is less than 1. So when your numerator is less than denominator, ये बड़ा होगा ना नीचे का और ऊपर, तो हमारी वैल्यू हमेशा कम आएगी 1 से, 0.8, राइट. सो व्हाट इज दिस? अपोजिट ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक. सो व्हेन चेंज इन द प्राइस इज हायर देन चेंज इन क्वांटिटी. ये कौन से गुड्स में होता है?
जो हमारी डेली नेसेसिटी की गुड होती है ना, डेली नेसेसिटी, सॉल्ट है, सॉल्ट नमक, इफ यू आर बाइंग इट फॉर 25 रुपीज पर केजी और अचानक से ये 20 केजीज का हो जाए या 15 केजीज का हो जाए, तो इसमें ना आपकी जो रिक्वायरमेंट है 1 केजी है एक महीने की, आप ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा का 2 केजीज लेके आओगे, 3 केजी 5 केजी एक्स्ट्रा नहीं लेके आओगे. यू वॉन्ट बाय इट विच इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज योर डेली नेसेसिटी. आनी ही है, चेंज होती है, नीड वैरी करती है डेली बेसिस पे. सो सच प्रोडक्ट, डेली नेसेसिटी प्रोडक्ट are said to have relatively inelastic or less elastic, having elasticity less than 1. And if we draw the diagram of the demand curve, the curve is steeper. That is your relative inelastic. Unitary elastic, very simple. Where elasticity is equal to 1 means quantity and change both are equal. सो 1% चेंज अगर प्राइस हो रहा है तो क्वांटिटी भी 1% से चेंज होगी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक. अगेन दिस इज इमेजिनरी कंडीशन. ऐसा रेयरली होता है कि जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में हो रहा है. एंड इफ द डायग्राम इज ड्रॉन इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. These were the degrees of elasticity of price or price elasticity of demand. So we finish here price elasticity of demand. Now few PYQs related to it. Which one of the following statement is correct regarding the slope, the point elasticity on all the points of rectangular hyperbola shape demand curve of a product? So now we know hyperbola is this. Here you have to identify which statement is correct. Slope remains the same while point elasticity goes on changing. Slope goes on changing while point elasticity remains same. Both slope and point elasticity remain same. Both slope and point elasticity goes on changing. स्लोप गोज ऑन चेंजिंग, पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन्स सेम. क्या मतलब है इसका? हमने पढ़ा ना इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी. तो आप अगर 5% चेंज करो 5% प्राइस ही चेंज होगा. आप अगर 10% चेंज करोगे 10% ही होगा, मतलब एट लास्ट 1 ही आना है. तो स्लोप या यहां पे बने 2 पॉइंट्स या यहां पे 2 पॉइंट्स बनेंगे या यहां 2 पॉइंट्स बनेंगे, उसका जो इलास्टिसिटी है वो सेम ही रहेगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ डिटरमिनेंट कि ये जो प्रोडक्ट है इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है या नहीं है, उसका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होगा. ये क्या, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? तो मेरे पास अगर एक प्रोडक्ट ए है, ठीक है, और इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो मेरे लिए तो ये इनइलास्टिक हो गया ना, मुझे तो इस खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जरूरत है. लेकिन अगर इसका एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, ऑटोमेटिकली मैं बी से सब्स्टिट्यूट करूंगी. तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इज वन डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी. सिमिलरली वी हैव डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इन वन बजट. मेरा कुछ बजट होता है हर चीज का. सो इफ आई एम बाइंग अ लहंगा फॉर द मैरिज और अ साड़ी फॉर द मैरिज, मेरा बजट क्या है? ठीक है, मेरे बजट में वो नहीं आ रहा है, मेरे बजट से बाहर जा रहा है, विल रिप्लेस इट, आई वोंट बाय इट. नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उस प्रोडक्ट के कितने यूजेस हैं? हीटिंग, कुकिंग, वाटर हीटिंग, कुकिंग, आयरनिंग एंड सो ऑन. अब क्या होगा, अगर प्राइस इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजेस में कुछ कम कर देते हैं. ठीक है, यूज कम कर देते हैं, डिमांड कम कर लेते हैं. विल स्टडी देम. इनकम ऑफ कंज्यूमर, मेरी इनकम ज्यादा है तो शायद मैं प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ, मेरी इनकम लो है तो शायद नहीं खरीद सकती.
हाउ हाई द प्राइस ऑफ गुड इज, कितना बढ़ रहा है, एक्सट्रीम तो नहीं है, मेरे बजट के ऊपर तो नहीं जा रहा है, लेवल के ऊपर। नेचर ऑफ गुड, गुड का नेचर मतलब उसका टेस्ट प्रेफरेंस में क्या रखती है, क्वालिटी क्या है। पीरियड ऑफ द टाइम अंडर कंसिडरेशन, कोविड के टाइम पे गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर 3000 का जो नॉर्मली आता था वो 50,000 में भी बिक रहा था, लोग ले रहे थे क्योंकि उस टाइम में उसकी जरूरत थी। जॉइंट डिमांड, टाइम लैप्स सिंस द प्राइस चेंज, विल कम टू दिस नाउ। This is a chart which is important with an example. Availability of close substitute. More substitute lead to higher elasticity as consumer can easily switch to the product. More substitute, more prices fluctuation, more demand fluctuation. ज्यादा है ना मेरे पास सब्सटीट्यूट, तुम प्राइस बढ़ाओ, मैंने डिमांड कम कर देना है. दिस इज इलास्टिक. हियर प्राइस इलास्टिसिटी इज हायर. एग्जाम्पल पेप्सी, कोल, स्प्राइट, दे आर सब्सटीट्यूट. इसके प्राइस बढ़ाओगे तो हम तो कोक और स्प्राइट पे ही जी लेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इन बजट. एक्सपेंसिव आइटम्स हैव हायर इलास्टिसिटी as price changes significantly impact the budget. मेरे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव आर्टिकल, एक्सपेंसिव होम डेकोर, तो अगर कोई चीज एक्सपेंसिव आ रही है और वो मेरे बजट से बाहर जा रही है, ऑटोमेटिकली आई विल रिप्लेस इट. तो फ्लक्चुएशन हाई है. हाइयर इलास्टिसिटी फॉर एक्सपेंसिव गुड्स, लोअर इलास्टिसिटी फॉर इनएक्सपेंसिव गुड. एग्जाम्पल सॉल्ट, लो कॉस्ट लो इलास्टिसिटी वर्सेस कार, हाई कॉस्ट हाई इलास्टिसिटी. पैसे भी ज्यादा हैं तो रिप्लेसमेंट भी ज्यादा. नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड, गुड्स विथ मल्टीपल यूजेस लाइक हैव हाइयर, जिसके मल्टीपल यूजेस होंगे उसमें उसकी हाइयर इलास्टिसिटी होगी. हाइयर इलास्टिसिटी का मतलब जहां पे हमेशा आपकी ईपी इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे EP इज ग्रेटर देन 1, हाइयर इलास्टिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी EP इज ग्रेटर देन 1, ठीक है. इनकम ऑफ कंज्यूमर, रिचर द कंज्यूमर हैव लोअर इलास्टिसिटी एज दे आर लेस सेंसिटिव टू द प्राइस. अब क्या है, पैसे हैं उसके पास तो उसकी तो इनकम अच्छी है, तो प्राइस अगर बढ़ भी रहे हैं उसको वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो चाहिए, वो डिमांड करेगा, तो लोअर इलास्टिसिटी. सो दिस इज लग्जरीज गुड. अब एक याद रखेंगे आप, लग्जरी गुड के अंदर में प्राइस इलास्टिसिटी EP इज ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी अपोजिट होता है. इनकम, व्हाई? बिकॉज इनकम इज हाई. इनकम हाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस प्रोडक्ट की उस लग्जरियस गुड का क्या प्राइस है. प्राइस ऑफ गुड, हायर प्राइस गुड्स हैव हायर इलास्टिसिटी. जितना महंगा प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस ज्यादा किया जाएगा. लग्जरी कार्स वर्सेस बेसिक ग्रोसरीज. नेचर ऑफ गुड, नेसेसिटी क्या है, मतलब वो गुड की जरूरत क्या है, मुझे अभी चाहिए, मेरी नेसेसिटी है, डेली है, या मेरा कंफर्ट है, मैं उसको क्यों खरीद रही हूं, अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए, या लग्जरी के लिए. तो मेरा नेचर क्या है, उसी के बेसिस पे इलास्टिसिटी इनइलास्टिसिटी डिफर करेगी. सॉल्ट हमारी नेसेसिटी है, इनइलास्टिक. एयर कंडीशनर हमारी लग्जरी है, इलास्टिक. फैन कंफर्ट है जो यूनिटरी होता है यूजुअली, ठीक है. पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कंसिडरेशन, सो नाउ दिस इज लाइक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. लॉन्गर टाइम वाले जो होते हैं, ठीक है, हाइयर इलास्टिसिटी, मतलब लॉन्ग टाइम, आगे का कुछ पता नहीं ना, ठीक है. अब जब हम जैसे प्राइस, पेट्रोल प्राइस की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म कहलाते हैं, ठीक है. ये शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देते, लॉन्ग टर्म में जाके दिखाई देते हैं कि कितना प्राइसेस बढ़ गए. जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड इज द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज जॉइंटली. अगर दो प्रोडक्ट साथ में यूज किए जा रहे हैं तो लोअर इलास्टिसिटी होती है. क्यों? इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इससे भी करना पड़ेगा, ठीक है. कार एंड पेट्रोल, कार को डीजल वाली कार से रिप्लेस करोगे तो उसको भी, उसके प्रोडक्ट प्राइसेस डीजल के हाई है. पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म. टाइम लैप्स्ड सिंस प्राइस चेंज, जब प्राइस चेंज हुआ था वहां से कितना टाइम गुजर गया. लॉन्गर टाइम सिंस द प्राइस चेंज लीड्स टू हायर इलास्टिसिटी ऑफ कंज्यूमर.
हायर इलास्टिसिटी, ठीक है। नाउ यू जस्ट रिमेंबर व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस टेबल आई हैव प्रोवाइडेड टू यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पे है, क्या, पॉजिटिव इलास्टिसिटी और नेगेटिव इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिमांड विल इंक्रीज विद द प्राइस डिक्रीज, ये पॉजिटिव है। प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगा, या फिर उल्टा ले लो, इफ द डिक्रीज इन प्राइस हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो कौन से गुड्स पॉजिटिव इलास्टिसिटी में आते हैं? हमारी नेसेसिटीज, सब्स्टिट्यूट्स, लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स, कंफर्ट गुड्स, ये हमारे कहां आएंगे? पॉजिटिव इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इनकम नहीं, ठीक है। नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, ये नेगेटिव में आते, ठीक है। इतना हाँ याद रखेंगे आप, ये दो चीजें याद रखेंगे कि पॉजिटिव इलास्टिसिटी किसकी है, नेगेटिव इलास्टिसिटी किसकी है। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, when the now this is related to the income, we'll study the income elasticity, then we will be doing this question. For now let's leave this. Okay, the question, just now we saw which product are positive, which product are negative elastic. Question is asking you, which of the following goods, commodities have positive elasticities? Necessity, substitute, luxury good, complementary, inferior. So as per the table, we know A, B, C. These all have positive elasticity, rest have negative elasticity, right? So this is your PYQ asked in exam. Another question. From the following determinants of price elasticity of demand, indicate the correct code for determinant having positive relationship with degree of price elasticity of demand. Now understand, positive relationship, ठीक है। रेंज ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ कमोडिटी, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी, प्रपोर्शन ऑफ इनकम ऑफ बायर स्पेंट ऑन कमोडिटी, इनकम ग्रुप ऑफ बायर्स परचेसिंग द कमोडिटी। पॉजिटिव रिलेशनशिप कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले आई गेव यू वन चार्ट, ये वाला, ठीक है। यहां पे हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ा, जो लोअर इलास्टिसिटी की बात करता है। क्यों लोअर इलास्टिसिटी की बात करता है? क्योंकि उसकी इनकम तो अगर हाई है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो यहां पे जो हमारे ऑप्शंस हैं, रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट ये पॉजिटिव है, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट कमोडिटी यूजेस पॉजिटिव है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम फॉर बायर स्पेंट इज पॉजिटिव, एंड इनकम ग्रुप ऑफ द बायर्स परचेसिंग द कमोडिटी इज नेगेटिव, ठीक है। इन तीनों को हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड दिस इज नेगेटिव। नाउ वी स्टडीड प्राइस इलास्टिसिटी, we will be moving to income elasticity, which is represented as EY, EI somewhere और YED, ठीक है। अब हम इनकम और प्रोडक्ट की डिमांड, तो मेरा अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? ये रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप is said to be income elasticity of demand. So income elasticity of a demand is an economic measure of how responsive the quantity demanded for a good or services is to change in income. Now the calculation is again, the formula is again similar, quantity demanded, change in the quantity demanded and change in the income, percentage change, ठीक है। If we calculate it, so it is quantity demanded change divided by original quantity multiplied by 100 divided by change in income, original income multiplied by 100, 100 cancel. So we have Q. Here they have represented by capital. You can use the capital as well to differentiate from the
प्राइस इलास्टिसिटी. सो लेट मी रिप्लेस इट एज Q, कैपिटल Q एंड कैपिटल I. तो आपका आएगा क्वांटिटी Q डिवाइडेड बाय Q, ठीक है, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस, इनकम सॉरी, एंड डिवाइडेड बाय इनकम. ठीक है, सिंप्लीफाइड ऐसे करके आता है. ये हमारा फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब just like in price elasticity we had 5 degree, here also we have zero income elasticity, negative income elasticity, unit income elasticity, income elasticity greater than unity, income elasticity less than unity. Now what is zero income elasticity? Where the demand for that product will remain constant irrespective whether my income increases or decreases. कुछ भी हो, मेरी इनकम चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड सेम रहेगा. सो दिस इज योर डिमांड, इट विल रिमेन सेम. इनकम, ठीक है, अगर इनकम एक्स एक्सिस पे बनाते हैं हम, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तो आपके x एक्सिस को पैरेलल जाएगा आपका डिमांड. यस, ठीक है, इनकम एक्सिस, इट इज इनकम एक्सिस. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होगा व्हेन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल. मतलब क्या, मेरे पास, मैं अभी तक एक किसी जनरल स्टोर से कपड़े ले रही हूं, मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो इस जनरल स्टोर के कपड़ों की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज आई विल गो फॉर द ब्रांड, राइट. सच elasticity is called as negative income elasticity and it is represented by EY. It is less than 0. Negative होगा ना तो less than 0. Unit income elasticity, when the income increases in any percentage, my demand will also increase in the same percentage. So EY here is 1, same proportion. Income elasticity greater than unity. Income elasticity greater than unity means greater than 1. 1 से greater, तो 1 से greater यानी ऊपर का जो है हमारा quantity demanded होगा, quantity demanded would be higher. So when my income increases या फिर percentage in increase in income is, so this is what it is written as quantity. This is change in quantity, change in income. तो जब quantity is 5, 4, so an income, increase in income bring about a more than proportionate increase in quantity demanded. More than proportionate यानी 5% अगर increase income में है, 10% increase in demand होगा. ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होगा, इसका ज्यादा वैल्यू होगा कंपैरेटिवली टू नीचे, तब जाके हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 से ज्यादा. सो ऑलवेज द quantity demanded proportion would be high compared to the income proportion. Income elasticity less than unity. So elasticity less than unity का मतलब है is less than 1. तो ऊपर का proportion क्या होगा, कम होगा, नीचे ज्यादा होगा. It means income increase proportion is high compared to the demand. तो मेरी income तो increase हो रही है, लेकिन वो demand उतनी increase नहीं हो रही है. So that is your income elasticity less than unity, और इसे हम low elasticity of income भी कहते हैं. Now, given goods, inferior good, necessity, normal good, luxury good, complementary substitute. जो हमारे given goods हैं
जिसे हम कई बार इंफीरियर गुड्स या वो गुड्स जो लोअर वेजेस वाले लोग अपना प्रोपोर्शन, लार्ज प्रोपोर्शन इसको खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, इनकी नेगेटिव होती है, जो हमने अभी पढ़ा ना, ई वाई इज लो, मतलब दिस इज लेस देन 1, ये वेरी लो होगी, -1 से भी नीचे, 0, -1 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो ईपी है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनके लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है, बट रेयर। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर हमारे वो गुड्स हैं जो हम जनरलाइज्ड वे में लेते हैं, लेकिन टाइम के साथ व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेस हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, ये भी नेगेटिव में है, ठीक है। ये सीरीज है, सीक्वेंस है, जो आप याद रखेंगे, एग्जाम में सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है। नेसेसिटीज जो हमारी डेली होती है वो लो पॉजिटिव होती हैं और लो इनइलास्टिक होती है इलास्टिसिटी में। नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव होते हैं, यहाँ वैरी कर सकते हैं। लग्जरी गुड हाई पॉजिटिव होते हैं, हाई इलास्टिक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट दे वैरीज। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली हम क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर समथिंग, ये वो गुड्स हैं जिनकी इलास्टिसिटी रिलेटेड गुड्स, यानी एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी दूसरे प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, इसलिए हम इसे बेसिक क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो आप याद रखेंगे वो ये चीज है, बिकॉज सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है। सो नाउ income effect of a price rise is greater than its substitution effect. Income effect of price rise is greater than substitution. Income effect is what? What do you mean by income effect? Income effect says when my income increases, and the price of the product remains same, I will have more power to buy another commodity, ठीक है। Substitution effect says if price increases I will substitute that product with another product, ये substitution effect है। तो कौन से goods हैं जहां पे income effect ज्यादा है of price rise? अब इसे price rise में समझते हैं। if the price is increasing, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, गिवन गुड्स में प्राइस इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, ये राइज इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन, यानी हम सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं, हम अपने इनकम इफेक्ट से रिप्लेस कर रहे हैं या दूसरे कमोडिटी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, वो होते हैं आपके गिवन गुड्स, ठीक है। They are called as giffen goods. Now see, this is the question. Arrange in an order. Arrange the following goods in ascending order for underlying income elasticity of demand. Income elasticity है, इनको इनकी elasticity की basis पे ये arrange करना है ascending order में. So we know सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारे giffen goods जो इंफीरियर गुड्स या नेगेटिव में आते हैं, ये नेगेटिव में, ठीक है, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा बोला हुआ है, फिर नेसेसिटी, ठीक है, उसके बाद में वी हैव ई, वी हैव बी फर्स्ट, गिफन के बाद इंफीरियर आएंगे, फिर पॉजिटिव पे हम जाएंगे, पॉजिटिव के बाद में सी नॉर्मल एंड डी लग्जरी, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन टू अरेंज increasing order में, again the same option, little bit different. So we have inferior, then we have necessity, then we have normal consumption, then we services and luxuries. Okay, here the nature of the goods is given. Now you have to match with elasticity of income demand. Normal goods में क्या होगी, inferior goods में, luxury good में, necessity good. So now EI will be greater equal to 1 or EI will be greater than 1, EI will be less than 1 or EI would be is equal to 0. You have to identify. So the answer here is option number A. Normal goods के लिए हमारी EI is 0.
ठीक है, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? सी, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट इफ आर इनकम इंक्रीजेस हम उनको रिप्लेस करते चलते हैं। इंफीरियर गुड्स इज योर जीरो, luxury goods is your greater than 1, necessity is your 0 and 1, between 0 and 1। ठीक है, इनको बाय हार्ट करना है आपको, you have to by heart them। next question again, PYQ। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बिलोंग्स टू व्हाट? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहाँ है? पॉजिटिव क्रॉस। ओके, नाउ वी हैव नॉट स्टडीड द क्रॉस, but still helping you out with this, the answer is this, option 3। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हमारे सुपीरियर गुड्स की होती है, नेगेटिव इंफीरियर की होती है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो सब्सटीट्यूट की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की होती है। सो नाउ मूविंग टू योर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है दैट when the price of one commodity is increased or decreased, what changes are being brought in the demand of other commodity? दो प्रोडक्ट्स जो रिलेटेड है, जैसे योर जियो एंड योर एयरटेल, दिस प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। तो अगर जियो अपने प्राइसेस इंक्रीज करता है तो एयरटेल के प्रोडक्ट की डिमांड का क्या होगा? जियो ने अपने टैरिफ इंक्रीज करी, लोग एयरटेल पे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब रिलेटेड के अंदर में हमारे दो आएंगे, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इनको, तो जहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, और जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो फिक्स प्रोपोर्शन में, वो साथ ही चलेंगे, एक का इफेक्ट दूसरे पे होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। So change in price of one commodity leads to the change in quantity demanded of another commodity. This is called as the cross elasticity of demand. The formula is given here. Just remember this, और क्या represent करता है, ठीक है। So cross elasticity demand is positive for substitute. Coffee and tea are the example. They are substitute with each other. तो अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है, हम टी से सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्राइस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव। क्यों? वन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर। यहां पे क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है ए का, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रहा है बी का। यहां क्या हो रहा है? एक प्राइस ए की इंक्रीज हो रही है, इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड बी की भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ ही चलेंगे, ठीक है। इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मेरे को इसको भी लेके साथ में चलना ही पड़ेगा, राइट। तीसरा केस है इन केस ऑफ अनरिलेटेड, जब कमोडिटीज रिलेटेड नहीं है तो वहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो आती है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन आप याद रखेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होगी? जब द प्रोडक्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। So see, the cross elasticity of a demand between the complementary goods is negative, right? Now, last term for the day, advertising elasticity of demand. What is advertising elasticity of demand? It says, AED से represent करते हैं, when there is a change in the demand or expansion in the demand बाय द मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटी। जब हम कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी या एडवर्टीजमेंट करके किसी प्रोडक्ट की डिमांड को पॉजिटिवली इंक्रीज करते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रमोशनल इलास्टिसिटी, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव रिलेशन, कि जितना आप कैंपेन करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा डिमांड। लेकिन इफ विद द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज हाई, अगर कॉस्ट हाई है, इफेक्टिवनेस कम है, आपने बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट दे दिया, उसकी इफेक्टिवनेस कम है, कॉस्ट हाई है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकता है। सिंपली रिमेंबर द फॉर्मूला एंड व्हाट डज इट मीन, दैट्स इट। सो दैट वाज द सेशन फॉर द डे। हियर वी कंप्लीट द इलास्टिसिटी। In elasticity, we studied elasticity of demand, of price,
income elasticity, cross elasticity, and we did few PYQs. In next session, we would be moving to our indifference curve, then forecasting of demand, and then utility analysis. Okay. Thank you everyone. Any question, any queries, you can ask me in the comment section. Like, share and subscribe to the channel for more such videos related to the management. We are doing a series for management code 17, and anyone who wish to follow and get this PDFs, please do join the Telegram group. I will be creating a separate Telegram group for the management students. Meanwhile, you can just join the common group. The link is given in the description. Thank you so much.